नोट कीजिए, नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई है वो नेशनल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल सामने लगाई गई है। मुझे एक फोटो दिखा दो चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने कभी सल्यूट जाके मारा उसको, नहीं मारते अभी भी अंग्रेज। शो मी a single picture of the chief of the army staff going and saluting that statue. The minister Hardeep Puri ji, the minister, he said somewhere, I was reading somewhere that you could not have put Mahatma Gandhi statue there because this is a military area. So you cannot put Sardar Patel because we already have a very big statue of Sardar Patel elsewhere. So we put Gandhi Subhash Bose. So that's like a Hobson's choice. They had no other option. So we never know. It may be just a mistake. They mean कि और बाद में इस बात को जस्टिस मुखर्जी ने कंफर्म किया हमको पर्सनली, दैट इज आफ्टर 2006 ऑनवर्ड्स, कि उनको वहां से फोन आया था या कोई बातचीत हुई है कि डीएनए मैच हो गया। तो वर्बली ये उनको जुमला दिया गया कि डीएनए मैच हो रहा है। एंड रिपोर्ट का जस्टिस मुखर्जी का प्लान था कि वो सब रिपोर्टों को लेने के बाद में एक झटके में एक बार में खोलेंगे। कोटिंग नंबर ऑफ टाइम्स इन नंबर ऑफ प्लेसेस की जो अभी सरकार है वो गांधी भक्ति में ज्यादा बिजी है रादर देन रिकॉग्नाइजिंग सुभाष चंद्र बोस इन अ लार्जर पिक्चर। बाबा को पूछा गया था क्यों हम निकल के नहीं आ रहे, अलग अलग उन्होंने अलग अलग टाइम पे आंसर दिए। तो उसमें से उन्होंने एक कारण बताया था उन्होंने कि इन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है इसमें एक इन्होंने सीक्रेट प्रोटोकॉल किया था कि ये मुझे हैंडओवर करेंगे अंग्रेजों को, मेरे पे चार्जेस लगाएंगे। जहां पर हम पिछले कई साल पहले थे हम वही हैं। The stories keep roaming around. Now there was a news, if I would like to share the screen, अभी 5-6 दिन पहले आई है, which the media even didn't pick up much. But if you see this is what is happening. Netaji death mystery, government-run labs refuses to share report on DNA sample of Gumnami Baba. Now my question is, we are stuck up at the same point where we were a couple of years back. The things have not changed, things have not moved. No, I wouldn't say that things have not moved. I mean, this very news will tell you that things have moved. So I wouldn't say things have not moved. What has happened, like, or what is happening rather over a period of time, that, and this is something which I predicted long ago. Somebody asked me, I do not know who was it, but somebody did ask me this question that the government will not accept this theory, Gumnami Baba, for whatever reasons, the reasons some of which you have given. So the government would never accept this theory. So I would respond, and I responded. Government would not respond, would not accept this theory, but then people would come to accept it over a period of time. The acceptability for Gumnami Baba angle would increase. So that is what has happened. So your question is right in the context. Insofar as government is concerned, the situation has remained the same. We have not moved. But in terms of public perception and in terms of people, awareness about this issue and so on and so forth, there is a wider acceptability. And with every passing day, the Gumnami Baba issue has not only it has been mainstreamed. More and more people are willing to believe or accept the fact that he was Subhash Bose. So we are making gains, and at the same time, officially we are not making any gains. So you are also correct. I am also correct. So officially we are not making any gains because they refuse to share DNA lab report, DNA reports from the lab. What is the reason? No. It's not the problem. The problem is not just the DNA. The problem is the attitude of the government of India. It is not changed. It has not changed. And the problem is that the ecosystem which governs our country, it has changed. Of course, it has changed a lot. Otherwise, you and I would not be talking about this case today. If Congress party were in power, you wouldn't be talking to me about this issue. And but then it has changed. But insofar as Netaji is concerned, the ecosystem has not changed much. It's very, very bare minimum. Some peripheral things have been done. The only shining point is the installation of the Subhash Bose statue at India Gate, which is a big deal. But again, we do not know whether it was like by mistake they have done it, or like because don't forget, the minister Hardeep Puri ji, the minister, he said somewhere, I was reading somewhere that you could not have put Mahatma Gandhi statue there because this is a military area. So you cannot put Sardar Patel because we already have a very big statue of Sardar Patel elsewhere. So we put Gandhi Subhash Bose. So that's like a Hobson's choice. They had no other option. So we never know. It may be just a mistake. They have not realized the importance of putting Netaji statue there. Probably they didn't have any other options. So we do not know whether the move was prompted by a desire to give Netaji's due place, or is it maybe because they're just filling the space. So situation ecosystem has changed.
Many things have changed. I would not say it is not hostile as it used to be, but at the same time, when it comes to the basic issues, the system has not changed. For example, India continues to look even today, especially our government, Netaji from the eyes of the colonial era, the British time. The Indian army still identify itself with the British Indian army. So the attitude has not changed. So, and that is something will take a long time, and we are trying to. Why the attitude has not changed, you are saying? Because अगर आप देखें तो you've been quoting number of times in number of places कि जो अभी सरकार है वो गांधी भक्ति में ज्यादा बिजी है rather than recognizing Subhash Chandra Bose in a larger picture. No, Gandhiji is 90% of the focus is given to Mahatma Gandhi. It's only about 10% जो दूसरों को बांटा जाता है. उसमें भी बहुत लार्जर शेयर जो है सरदार पटेल और अम्बेडकर जी का बारे में होता है. तो हम लोग को तो पीनट्स वगैरह मिलता है, कुछ नहीं मिलता, जबकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सुभाष बोस का था पूरे देश के अंदर फिल्म बनाने में. तो पूरा आप देखिए, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है जहां आप बैठे. हमारी जितने मिशन हमारे फॉरेन कंट्रीज में, हमारी जितने खासकर, वो गांधी भक्ति के अलावा कुछ करती नहीं. वो लोग सारी दुनिया में इन्होंने ढंडोरा पीट रखा. हमारे पैसे पे जाकर के कभी ये कभी वो कभी ये, दुनिया भर में, अफ्रीका में इन्होंने इतने दुनिया भर के गांधी जी के नाम के चीजें खोल दी. इनफैक्ट दे पुट कंडीशंस, दे गिव हेल्प टू अफ्रीकन कंट्रीज एंड दे पुट अ कंडीशन कि गांधी के नाम का सेंटर खोल दो. सारे एम्बेसी में गांधी की मूर्तियां लग रही हैं हर जगह पे. हमारी गवर्नमेंट फंड कर रही है उसको हर जगह पे. तो गवर्नमेंट का फंक्शन तो पूरा सिस्टम, आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए और जस्ट पुट कि इंडियन मिशन गांधी, यू विल फाइंड एवरी डे, एवरी टाइम वन ऑफ आवर मिनिस्टर्स इज गोइंग टू एनी अदर कंट्री, वो सब गांधी जी की मूर्ति जाके हाथ जोड़ देते हैं. तो सिस्टम का पूरा फोकस गांधी भक्ति पे है. बिकॉज सिस्टम में एक चीज जो हमारी, जो एक लोगों को समझना पड़ेगा कि जो एलीट क्लास है इस देश का, जो रूलिंग क्लास, जो एलीट क्लास है, उनका एटीट्यूड बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एंड वो बड़ा सिंपल है कि मैंने अपने बच्चों को सेटल करना है अमेरिका में, यूरोप में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका बेसिक एम सबका सेम है. और उनको मालूम है कि गांधी जी का ब्रांड वहां बिकता है अमेरिका में, यूरोप में, उसी को बेचो. तो आप सुभाष बोस को छोड़िए, उससे सुभाष बोस के, आप सुभाष बोस को छोड़िए, वीर सावरकर के लिए क्या किया सरकार ने पिछले 4 साल में? एक दो ट्वीट मारने से बड़ा एहसान कर दिया उनके ऊपर आप लोगों ने. ट्वीट लगा दी उनके ऊपर. ट्वीट तो अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती और अगर ट्विटर होता, वो भी ट्वीट तो वो भी मार देती. सोनिया गांधी भी जाके सुभाष बोस की मूर्ति पे गार्लैंड करती है. तो वो तो पंडित जी को बोल. अच्छा, सरप्राइजिंगली अभी तक किया नहीं है सोनिया गांधी ने. सुभाष बोस के में किया था. राहुल गांधी सिंगापुर में गए हैं, तो INA मेमोरियल में गए थे वो. नहीं, नेताजी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता. नेताजी का नाम बहुत बड़ा है. तो वो तो पंडित जी ने भी कभी, उनके बड़े बड़े पंडित जी बहुत उस मामले में बड़े चालाक थे कि पंडित जी ने अपनी कोई पब्लिक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में और उसके बाहर में उन्होंने बहुत डिसेंटली दी है. जो काम करना है पीछे से करना है. तो इतना उन्होंने बहुत चालूपंथी से काम किया कि फाइलों में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ. लैब जो है, जैसे अभी आप और मैं ऑफलाइन बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ये जो लैब है यहाँ से ये रिपोर्ट्स निकाल क्यों नहीं रहे हैं? व्हाई आर दे सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग इट आउट? अभी हम आते हैं कन्विंस्ड कि वो DNA उन्हीं का है, या फिर उनको किसी और बात का भी डर है? तो सारी लड़ाई तो उसी की है कि सच्चाई गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती ना. अगर वो आप लैब में, अब देखिए उसका रीजन क्या, पहले तो उसका बैकग्राउंड जाना जरूरी है कि कहानी है क्या बेसिकली. पूरी नेताजी की डेथ मिस्ट्री को आप गिनती के 4 पॉइंट पे आप समराइज कर सकते हैं. 1998-99 के अंदर, 98 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ. हमारे देश में कस्टम है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, वो उस स्टेट के नहीं होते हैं. तो प्रभाशंकर मिश्रा जी वहाँ के चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के. तो लोगों को ये बात में दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि बंगाली होगा तो बंगाली ने वर्ड जजमेंट दिया. ऐसा कुछ नहीं होता. वैसे ही बंगाली, वैसे भी पढ़े लिखे बंगाली जो है 90% होस्टाइल है सुभाष बोस के लिए. उनको कोई सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं, होस्टाइल है इनफैक्ट बहुत ज़्यादा. बट एनी हो, तो वो प्रभाशंकर मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा, मैं उनसे मिला था. अब तो उनकी डेथ होगी, दिल्ली में थे बाद में ग्रेटर क्लास में. तो उन्होंने बाद में बोला कि मैंने सरकार के वकील को पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है इसमें. तो सरकार में भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सरकार में जब इस देश में सरकार कांग्रेस की है तो कुछ रवैया कुछ और होता है. लेकिन जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, नेताजी को कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम हुआ है. स्टार्टिंग विद मोरारजी भाई ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से सुभाष बोस का केस डेट का खुल गया बाद में जाकर के. पहली बार हमने रूस सरकार से बातचीत की जब VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस देश के. तो 98 में देवीगौड़ा जी की गवर्नमेंट थी. तो शायद वो कांग्रेस की तरह वो झूठ नहीं बोल सके. उनको कोर्ट में एडमिट करना पड़ा सरकार के वकील को कि प्लेन कैश की में उनकी डेथ की बात बोली जाती है, लेकिन एविडेंस जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी. तो कोर्ट ने बोला आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि एविडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हैव अ प्रॉपर इंक्वायरी डन. तो वो प्रॉपर इंक्वायरी, जब भी कोर्ट का फैसला आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं.
अब अटल जी वो काम नहीं कर सकते थे जो राजीव गांधी ने इसी तरह का, मैं नहीं बोलूँगा, सिमिलर ऑर्डर आया था राजस्थान हाई कोर्ट से, जस्टिस भार्गव ने दिया था 1985 में। तब राजीव गांधी सरकार ने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, काफी टाइम तक इग्नोर करते रहे, बाद में पिटिशनर मर गया तो उन्होंने केस को नहीं कुछ किया उन्होंने। तो लेकिन अटल जी की गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक तो हॉस्टाइल नहीं है, और दूसरा कि अटल जी खुद सुभाष बोस के प्रेफरेंस से जुड़े हुए, तो वो नहीं उसको हटा सके। तो इन्होंने एक कमीशन बना दी और मुखर्जी आयोग वहाँ बनाया। मुखर्जी आयोग ने बड़ी डिस्पैशनेटली, मेरे को उसकी पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि मैं, कई लोग आजकल बहुत रिसर्चर पैदा हो गए हैं जिनको एबीसीडी केस की पता नहीं है, और वो बैठ के इधर उधर से पढ़ के गूगल से पढ़ करके दिखा रहे हैं। मुझे इस केस की पर्सनल नॉलेज है, मैं मुखर्जी आयोग के सामने गया था, मैं जस्टिस मुखर्जी को जानता था, फोटो है उनके साथ मेरी। तो उनको फिर उन्होंने, जस्टिस मुखर्जी ने बड़ी डिस्पैशनेटली उन्होंने अपनी इंक्वायरी करी, कोई पॉलिटिक्स उसमें नहीं आने दी। किसी ने उनके सामने अगर पंडित जी को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने मना करा कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है, जो आपने बोलना है बाहर जाके बोलो, मेरा सिर्फ एक ही काम है, मुझे पता लगाना है कि आदमी कब मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा। पंडित जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो साफ उन लोगों को मना करते थे, वो मुझे, मेरे सामने ये डिस्कशन मत कीजिए, सिर्फ टू द पॉइंट रखिए मेरे पास में आपको। तो वो उन्होंने फिर कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड बड़ा ऑनेस्ट जज है, जज भी अलग अलग किस्म के होते हैं देश के अंदर, तो उसका कोई रिकॉर्ड में कोई खराब नहीं है, खानदानी आदमी है। उनके छोटे भाई बहुत बड़ी पोजीशन में है इंग्लैंड में, मित्तल ग्रुप के अंदर डायरेक्टर्स में आते हैं। उनके पिताजी जाने माने वकील थे, छोटा भाई बहुत बड़ा वकील है अभी भी कलकत्ता में, तो बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली है, खानदानी लोग हैं। और जस्टिस मुखर्जी ने फिर वो स्टेटमेंट अपना, मतलब उन्होंने प्लेन क्रश की थ्योरी को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि रूस जाने की प्लानिंग थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। गुमनामी बाबा पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया, और उन्होंने साफ एडमिट किया है कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट की आदमी सुभाष बोस था। और ये लोगों को समझना, ये बड़ी सिंपल बात है, लेकिन इसको मुझे बार बार हैमर करना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब आप समझिए, उसकी सीरियसनेस समझिए। सारे केस जो मर्डर के होते हैं पूरी दुनिया में कोर्ट कचहरी में, वो आई विटनेस अकाउंट के बेस पे सेटल होते हैं कई बार, कि मैंने फला आदमी को गोली चलाते देखा। आपने स्टेटमेंट दी जज के सामने, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका में कोई कंट्री हो, और जज अगर एक्सेप्ट कर रहा है कि ये स्टेटमेंट क्रेडिबल है, तो उस आदमी को फांसी हो जाएगी, उस दूसरे आदमी को। तो आपके आई विटनेस अकाउंट पे सबसे जो बड़ी सजा दी जा सकती है दुनिया में, वो है मौत सजा, मौत की सजा वो दी जाती है, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट की अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तो मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लोग मानते हैं कि साहब वो उसका भतीजा है, अगर वो भतीजा कह रहा है कि मेरे चाचा ने ये काम किया, तो भाई ही हैज नो रीजन टू टेल लाइज अबाउट हिज ओन अंकल। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने पुराने रिटायर्ड जज की ये क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट है। फिर उन्होंने ये बोला कि उनका जो आपस में जो एक्सचेंज हुआ है, उनका कोरेस्पॉन्डेंस जो उनका एक्सचेंज हुआ था गुमनामी बाबा का उनके फॉलोअर्स के साथ में, खासकर वो लोग जिनका लिंक सुभाष बोस के साथ है, फॉलोअर्स भी अरे गहरे नहीं थे उनके, वो आई विटनेस अकाउंट को मैच कर रहा है। तो यू हैव द आई विटनेस अकाउंट इज गोइंग, यू हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गोइंग। द प्रॉब्लम कम्स, द रीजन व्हाई जस्टिस मुखर्जी कुड नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी टू बी ट्रुथफुल, इसेंशियली बिकॉज गुमनामी बाबा की जो हैंडराइटिंग की जो टेस्ट किया गया, सरकारी लैबों से नेगेटिव रिपोर्ट्स आई, और वहाँ पे 5-7 दांत मिले थे, जिन दांतों पे डीएनए टेस्ट हुआ है 2 लैब में, जिसमें से एक लैब का टेस्ट इनकंक्लूसिव था, दूसरी लैब का टेस्ट कंक्लूसिव था कि वो गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेताजी गुमनामी बाबा का लिंक इस्टेब्लिश इसलिए नहीं हो सका क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो सरकारी लैबों से आई थी वो किसके खिलाफ हो गई। जी, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा। जी, आपने कहा कि यहाँ पर 2 लैब्स थी, एक में इनकंक्लूसिव था, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान सकते हैं, राइट? जो दूसरी लैब थी, और ये दोनों लैब सरकारी थी, दोनों लैब्स वेस्ट बंगाल में। आप बात कर रहे हैं, मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द हैंडराइटिंग पार्ट, और मे बी वी कैन टेक हैंडराइटिंग लेटर ऑन। लेट्स स्टार्ट विद द डीएनए थिंग, क्योंकि ये दोनों फॉरेंसिक एक में ही आता है। एक माचिस की डिब्बी वहां से मिली, क्योंकि जस्टिस मुखर्जी कमीशन जब वहां पे गई है अयोध्या में, तो ये सारा सामान जो गुमनामी बाबा का था वो 85 में नेताजी की भतीजी ने कोर्ट केस करके कर दिया था, और कोर्ट ने आदेश लेकर के उसको सील कर दिया पूरे सामान को, और उसकी प्रॉपर एक इन्वेंट्री बनाएगी, बहुत डिटेल इन्वेंट्री की क्या क्या सामान है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ का कोई गुंजाइश ही नहीं है। 85 में कांग्रेस पार्टी के होते होते कोर्ट के आदेश पे एक डिटेल इन्वेंट्री बना करके पूरे सामान को
डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में सील कर दिया। इसका मतलब कोई कंटामिनेशन या बाद में डालने का स्कोप है नहीं उसके अंदर, नंबर 1। तो लोगों को पता नहीं है, लोग जो अजीब अजीब बातें फ्लोट करते रहते हैं कि साहब ये तो आरएसएस ने प्लान कर दिया, उनको एबीसीडी केस की नहीं पता कि इस केस में बहुत से मुसलमान भी हैं। जिस जज ने ऑर्डर दिया वो मुसलमान जज था, वो आरएसएस का आदमी नहीं था। उसके ऑर्डर दिया कि सारा सामान को सील करो, क्योंकि केस में जान थी। 2001 में जस्टिस मुखर्जी खुद वहां पे गए अयोध्या में, और उन्होंने कोर्ट को परमिशन लेकर के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अंदर अपना कोर्ट लगाया, और वहां पे उन्होंने वो सामान को खुलवाया जो ट्रंक में लॉक इन की में रखा हुआ था। तो हमारी आंखों के सामने बहुत पत्रकार वहाँ मौजूद थे, पूरे लोकल एरिया में सब पूरा कवर हुआ था, सारे मीडिया वाले, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के सब लोग वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने वहाँ जाके वो मजदूरों को बोल करके सारे वो बड़े बड़े बक्से जो है 40 मतलब 24-25 बड़े बड़े पुराने जमाने के ट्रंक, उसमें वो सामान इसेंशली बहुत सारी बुक्स थी उनकी, बहुत सारी हजारों किताबें, वो उनको लाया गया। और क्योंकि वो ला करके फिर वो खोल के दिखाएं, एक पोडियम बना था, पोडियम के एक लेवल पे सेन गुप्ता जी जो कमीशन के सेक्रेटरी वो बैठे हैं, दूसरी तरफ में कमीशन का ऑफिशियल बैठा हुआ है, और टॉप पे मुखर्जी बैठे हुए। तो एक कुजाई मतलब एक कोर्ट टाइप उन्होंने बना दिया था वहाँ पे करके, और मजदूर वहाँ से वो ट्रंक को लेके आते थे, ट्रंक को सामने रखा जाता था, खोला जाता था, और जस्टिस मुखर्जी ऊपर से बोलते थे कि इसमें से ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ। अब क्योंकि वो लेबरर्स जो थे वो बेचारे, वो उनको तो उनका काम उठा के ला के रखना था। तो वहाँ पे एक जस्टिस पांजा जी थे हमारे, जो मुखर्जी कमीशन में नियुक्त थे। ही वॉज अ फॉर्मर सेशंस जज भी थे, रिटायर्ड बुजुर्ग आदमी थे। तो वो पांजा जी जो है उठा करके सामान को निकाल के दिखा रहे थे। तो ओल्ड मैन बिकेम टायर्ड आफ्टर सम टाइम। तो हम लोगों ने वॉलंटियर किया, मैं थे और हमारे एक अशोक वहाँ पे टंडन जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इस केस को पहले ब्रेक किया था, अशोक जी ने। तो अशोक जी थे, मैं, हम लोग इकट्ठे खड़े थे। तो हमने वॉलंटियर किया कि हम लोग, अगर आप परमिशन देंगे तो हम लोग भी ये सामान को उठा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। हमारा कहा कि हमारी कार सेवा हो जाएगी, उसी कार सेवा के बहाने हमको ये सामान जो है देखने को मिल जाएगा, उसी बहाने वही हुआ। तो हम लोगों ने वो सामान को उठा करके दिखाना शुरू कर दिया। जस्टिस मुखर्जी ने बोला कि आप किताबें देखिए, किताबों के अंदर किस किस में हैंडराइटिंग के सैंपल अच्छे हैं। तो वो मैं किताबें खोल खोल के उनके सामने देख के उनको दिखाता था करके। इसी प्रकरण में करते करते हमारे हाथ में उनको एक माचिस की डिब्बी मिली, वो सेन गुप्ता जी के पास में गई। तो वो कह रहे इसमें क्या है करके। तो मैंने उनको बोला, मुझे भी याद है कि सर इसके अंदर उनके दांत रखे हुए, क्योंकि मैंने सुना था किसी लोगों से कि उन्होंने अपने दांत निकाल के माचिस की डिब्बी में रखे हुए। देन सेन गुप्ता सौ कि हाँ इसमें दांत है, रख लिया। इस टाइम तक जस्टिस मुखर्जी का प्लान था कि गुमनामी बाबा के कोई उनका स्मोकिंग पाइप, उस पाइप पीते थे, पाइप सिगार वगैरह, वो ले जाएंगे जिसमें शायद उनके थूक में कुछ सलाइवा हो। उनका आइडिया था कि उनके फिंगरप्रिंट्स को उठाएंगे वहां से। उनका आइडिया था कि तो चप्पल ले गए मेरे ख्याल से, स्मोकिंग पाइप था ये शायद मिल जाए। लेकिन जब दांत ही मिल गए तो दांत से बड़ा तो आपको एक्चुअली बॉडी का पार्ट मिल गया था। तो फिर ये जब कमीशन वहां पे गया है तो इन्होंने हैंडराइटिंग को करने की कोशिश करी, इन्होंने फिंगरप्रिंट करने की कोशिश करी, और उन्होंने डीएनए करने की कोशिश करी। तो डीएनए में इन्होंने पहले अपना ये 7 दांत निकले थे उसमें से, 7 टीथ को भेजा है CDFD हैदराबाद, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है लैब जो है। उसने रिपोर्ट दी है जून 2003 में, वो रिपोर्ट 2003 में। जस्टिस मुखर्जी ने उस रिपोर्ट को नहीं खोला, वो सील बंद रही। 2003 में रिपोर्ट जस्टिस मुखर्जी को आ जाती है वहां से, उनको नहीं मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है। ये बात मुझे मालूम चली है बाद में, उस टाइम पे नहीं मालूम थी, लेकिन ये बाद में मुझे कमीशन के सोर्सेस ने बताया कि, और बाद में इस बात को जस्टिस मुखर्जी ने कंफर्म किया हमको पर्सनली, दैट इज आफ्टर 2006 ऑनवर्ड्स, कि उनको वहां से फोन आया था या कोई बातचीत हुई है कि डीएनए मैच हो गया। तो वर्बली ये उनको जुमला दिया गया कि डीएनए मैच हो रहा है। एंड रिपोर्ट का जस्टिस मुखर्जी का प्लान था कि वो सब रिपोर्टों को लेने के बाद में एक झटके में एक बार में खोलेंगे। फिर ये बचे हुए दांत जो थे, 5 दांत, इसका मतलब कमीशन CDFD हैदराबाद ने 2 दांत यूज किए और 5 दांत को वापस भेज दिया। अब इसमें आप ये बात ध्यान रखिए कि जस्टिस मुखर्जी आयोग ने कहीं CDFD को ये नहीं बोला था कि आप 2 दांत यूज करोगे, 3 दांत यूज करोगे। सो दे वर एट लिबर्टी टू यूज हाफ ऑफ द टीथ एटलीस्ट, और इवन मोर। लेकिन उन्होंने अपने विजडम में 2 दांत को यूज किया, 5 दांत वापस भेज दिए। इन 5 दांत को CFSL कैलकाटा को दे दिया जस्टिस मुखर्जी आयोग ने दिसंबर 2003 में, 22 के आसपास, 22-23 तारीख की बात है।
और CFSL कलकत्ता भारत की सबसे ओल्डेस्ट फॉरेंसिक लैब है, और ये पहले आईबी के अंडर काम करती थी, आजकल ये गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। और वहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी जो मेरे ख्याल से सर्कमस्टेंशियली अपने आप को ही प्रूव कर देगा कि ये पूरे केस में धांधलेबाजी हुई है, कि 22 तारीख को या 23 तारीख को जब भी वो उनको दांत मिलते हैं, उसके 1-2 दिन के बाद एक कलकत्ता का बहुत सबसे बड़ा अखबार है बांग्ला का, आनंद बाजार पत्रिका, एबीपी ग्रुप, जो हिंदी चैनल भी चलाता है, अभी सरकार उसके मालिक है, पहले कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस के ही मेंबर बन राज्यसभा के, कांग्रेस ही है, पूरा कांग्रेस का माउथ पीस है। इनफैक्ट कांग्रेस के 2 माउथ पीस हैं आजकल, एक तो ये टेलीग्राफ आनंद बाजार, दूसरा नेशनल हेराल्ड, ये ज़्यादा अच्छा माउथ पीस है कांग्रेस का। तो ये इनमें खबर उन्होंने छापी है कि गुमनामी बाबा का डीएनए मैच नहीं हुआ है, वो तो नेगेटिव रिपोर्ट है। तो मतलब ये कोई चमत्कार हुआ कि इनको टेस्टिंग करने से पहले इनको मालूम चल गया कि साहब ये तो टेस्ट मैच ही नहीं कर रहा। तो बाद में ये जून 2004 में, मतलब 6-7 महीने के बाद जाकर के CFSL ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट थी कि उनका डीएनए मैच नहीं कर रहा है, और ये रिपोर्ट जस्टिस मुखर्जी आयोग को भेज दी, और जस्टिस मुखर्जी ने 2004 जून में रिपोर्ट को खोल के देखा तो CFSL ने लिखा हुआ था कि इनकंक्लूसिव है कि ये आदमी सुभाष बोस नहीं थे, और CDFD की रिपोर्ट में मेंशन है कि द रिपोर्ट इज इनकंक्लूसिव। तो बेसिकली ये 2 लैब हैं, एक लैब बोलती है इनकंक्लूसिव, एक लैब बोलती है कंक्लूसिव। सो एक लैब बोलती है इनकंक्लूसिव और एक लैब बोलती है कि है ही नहीं, तो एक वो कहते हैं सुभाष बोस ने, दूसरी लैब कंक्लूसिव है, CFSL कलकत्ता कहती है कि वो नेताजी नहीं थे, CDFD हैदराबाद कहती है कि इनकंक्लूसिव रिपोर्ट है। And both of them come under the central government? Both come under central government. Okay. And अभी इन्होंने सेंट्रल उसमें, गवर्नमेंट और ये दो, अगर आप उसको पार्टी की बात करेंगे तो 2003 में अटल जी प्रधानमंत्री थे, और CDFD की रिपोर्ट आई है तो अटल जी के टाइम पे आई है, और CFSL की रिपोर्ट आई है कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आई है। तो दोनों ही गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो भारत सरकार तो शुरुआत से ही छुपा रही है। भारत सरकार का ये दावा करना कि भारत आजाद हो गया अहिंसा की वजह से, ये तो झूठ, तो लगातार सारी सरकारें ये बोल रही हैं, तो झूठ है। कभी तो आजादी से, अहिंसा से देश कहाँ से आजाद हो गया? अहिंसा से तो यहाँ किराया में काम खाली करता है। When there is something conclusive, you don't need to hide it. ठीक है, they refuse to share a report on DNA samples of गुमनाम। ये कंक्लूसिव है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये CFSL कलकत्ता की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो बोला कि वो उनके सब, ये कंक्लूसिव है, तो आपको रिपोर्ट शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, उसके अंदर अलग से कहानी है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि ये डीएनए टेस्टिंग होती क्या है, मतलब, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मतलब इसको समझाना। डीएनए बहुत अजीबो किस्म की साइंस है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक कि कोई फिजिक्स के बड़े रूल सिखाए। तो जो मैं एक एज ए ले पर्सन जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ सिंपल लैंग्वेज में, वो ये होता है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं बायोलॉजिस्ट वो आपके लिए होगा, हमें जैसे हमारी तो मोटी बुद्धि, हमें समझ में नहीं आता, हम तो पॉलिटिकल साइंस के आदमी है, हमें आप कहाँ समझा रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की चीजें। तो हमें जो समझ में आता है, यू कैन करेक्ट मी, जो बेसिक मेरी सेंस ही होती है कि कम से कम 2003-4 तक में ये टेक्नोलॉजी जो थी वो ये थी कि एक जीनोम एनालाइजर नाम की एक मशीन होती है, उस मशीन में आप जो भी आपने सैंपल टेस्ट करना होता है, जिसका डीएनए निकालना होता है, उस सैंपल को आप मशीन में डालते हो। मतलब डीएनए में होता है कि किसी भी तरह कंटामिनेशन नहीं होती, तो उसमें वो हाथ में ग्लव्स लगा के मशीन में सैंपल डाला जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पाउच है, इसमें अंदर का मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसके बाद में 25 लोग हाथ लगा रहे हैं, ये कंटामिनेशन है कि सबके हाथों के इसमें उसमें वो जीन उसमें जाएंगे, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल उसको बिना हाथ लगाए मशीन जो होती है, जैसे हमारा एक्सरे मशीन होती है, वैसे ये मशीन जो है उस सैंपल को स्टडी करती है और एक चार्ट प्रोड्यूस करती है। उस चार्ट को रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफोरोग्राम कहा जाता है। और जिस चीज को हम लोग डीएनए, और एक सिंपल चार्ट होता है, 1 2 3 चार्ट होते हैं, मतलब चार्ट के हिसाब से लेकर चलिए आप, जैसे एक्सरे होता है। जिस चीज को हम लोग आम भाषा में डीएनए रिपोर्ट कहते हैं, इसेंशियली वो होता क्या है कि इस चार्ट को देख करके जो डीएनए एक्सपर्ट होता है वो अपनी रिपोर्ट लिखता है। तो डीएनए रिपोर्ट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफेरोग्राम या रॉ डेटा की रीडिंग कहा जाता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस नाउ। जो CDFD जो है उसने अपनी रिपोर्ट में इलेक्ट्रोफेरोग्राम की कॉपी लगाई है, थोड़ा सा धुंधली सी है, वो अलग कहानी है, उस पर हम बाद में पढ़ सकते हैं कि लगाया, धुंधला है, थोड़ा क्लियर नहीं, तो उसमें रीडिंग थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, लेकिन उन्होंने अपना लगा के शेयर किया।
पहली बात ये कि रिपोर्टें हमने कैसे ली, हमने ऑथेंटिकेट रिपोर्ट ली है। हम लोगों ने, चंद्रचूड़ घोष जो मेरा मित्र है, हमने मिलके, और ये सूचना का अधिकार में हम सरकार के पीछे पड़ गए 2005 के बाद से। तो 2009-10 के बाद जाकर के चंद्रचूड़ ने हाथ धो पीछे करके इनसे, गृह मंत्रालय से इनकी रिपोर्टें ली है, क्योंकि जैसे जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन जो था वो गृह मंत्रालय के अंदर काम करता था। जैसे ही कमीशन खत्म हुआ 2005 में, तो ये मुखर्जी के सब रिकॉर्ड जो है गृह मंत्रालय को ट्रांसफर हो गए। तो इसी रिकॉर्ड से, इसलिए गृह मंत्रालय से हम लोगों ने एग्जैक्टली वही रिपोर्ट जो मुखर्जी आयोग को दी गई थी CDFD और CFSL द्वारा, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज हमको गृह मंत्रालय से मिल चुकी है। तो ये रिपोर्टें हमारे पास में है, सर्टिफ फ्रॉम दी होम मिनिस्ट्री। वैसे मेरे पास पहले भी थी, लेकिन वो कहानी अलग है, वो किसी और सोर्स से आई थी। लेकिन हमें ऑथेंटिक सोर्स से, गृह मंत्रालय से CDFD की रिपोर्ट और CFSL की रिपोर्ट मिल चुकी है 2009-10 के आसपास। तो CDFD की रिपोर्ट में तो इलेक्ट्रोफेरोग्राम लगा हुआ है, लेकिन CFSL की रिपोर्ट में इलेक्ट्रोफेरोग्राम नहीं लगा हुआ। दुनिया जहां तक की डिटेल्स है नेताजी के परिवार के बारे में, मैं आई डोंट थिंक सो किसी की पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक करना चाहिए। उनके फैमिली के लोगों के प्रोफाइल्स या उनका नाम, पता, एड्रेस, फोटोग्राफ, कहाँ पैदा हुआ, उनके ब्लड सैंपल्स, इट्स इज ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेताजी की एक भतीजी का पूरा डिटेल दे रखा है। आई एम श्योर शी विल नॉट वांट दिस टू बी शेयर्ड पब्लिकली। उसके पूरा ब्लड का एनालाइजर उसमें डाल रखा है। तो आपकी जो चिंता वहां नहीं थी कि किसी की प्रिवेसी आप लोगों ने इंट्रूड कर दी है, पूरा लगा रखा उन्होंने। तो पूरी डिटेल में रिपोर्ट उन्होंने बना रखा है, पूरा तामझाम, लेकिन मेन चीज उसमें से मिसिंग है। तो अब इसमें 2-3 रीजन आते हैं कि क्यों हमने सस्पेंशन किया। पहली बात तो ये कि बाद में मुखर्जी आयोग के सामने ही हमको लोगों ने बोल दिया था कि इसमें गड़बड़ हुई है 2006 के बाद, क्योंकि ये, मैं ओल्ड फैशन आदमी हूँ जर्नलिस्ट। खुद मुखर्जी सर ने आपसे कहा था कि उनको कॉल आया था। हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहले हमें मुखर्जी आयोग ने, कमीशन ने नहीं, जस्टिस मुखर्जी ने नहीं बताया था, क्योंकि जब वो जज थे वो बात नहीं करते थे किसी से। लेकिन 2006 के बाद से जब वो कमीशन का काम खत्म हो गया, वो भी थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए थे करके, और मेरा आना जाना कलकत्ता में होता था, चंद्रचूड़ का होता था। सो 2006 के बाद से, और मैं भी इस बात को पहले खुल के नहीं बोलता था, क्योंकि जस्टिस मुखर्जी की डेथ लास्ट ईयर हुई है, और एक मेरा उसूल है, और उसूल भी क्या हमारा ये है कि अब कोई इस 20 साल के 21 साल से जब मैं काम कर रहा हूँ, 22 साल से, बहुत लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। अब मान लीजिए कि फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट कि मान लीजिए कि आपके मामा जी देश के IB के चीफ थे, ठीक है, और आप मुझे बात करते करते एक बार बोलो कि अनुज यार, मेरे को ना अपने मेरे मामा जी ने मुझे ये बताया, तो ऑब्वियसली इस इन्फॉर्मेशन को मैं पब्लिक में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने मुझको ट्रस्ट करके मुझे ये बात बताई है। तो ऐसे लोगों ने मुझे, उनके रिश्तेदारों ने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंटेलिजेंस के लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों में, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये बातें बताई है। तो ये मैं ठोक बजा के बोल रहा हूँ कि वो सुभाष बोस थे, लेकिन मैं उनके नाम पब्लिकली ले सकता नहीं, तो मैं साबित नहीं कर सकता कि अगर मान लीजिए किसी सरकार के बहुत बड़े अफसर ने मुझे फाइल लेकर के कुछ बताया था कि इसमें ये लिखा हुआ है, तो आज मैं कैसे पब्लिकली बोलता हूँ इस बात को? मेरे पास कोई सबूत नहीं है दिखाने का कोई। वो आदमी साफ इग्नोर कर जाएगा, उससे वो जिंदा भी ना हो, तो मैं कैसे साबित करूं कि वो मैंने कहा था मुझे करके? तो ये मैं लीगली साबित नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाती है। जस्टिस मुखर्जी का क्योंकि वो चले गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने 2006 के बाद से मुझे, चंद्रचूड़ को, हमारे दोस्त सायक को, नेताजी के परिवार के लोगों को और कईयों को उन्होंने ये बात बोली कि इन्होंने रिपोर्टें चेंज करी है, और ये बात ही बोली कि सिर्फ CDFD से तो फोन आया था, बताया गया कि रिपोर्ट मैच कर रही है, लेकिन बाद में रिपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि साहब आपके पास सबूत क्या कि जस्टिस मुखर्जी ने आपको बोला? एक तो कि मल्टीपल लोगों ने बोला, सिर्फ मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1, हमारी फोटोग्राफ्स हम लोग के साथ में, ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हम उनसे मिले थे, फोटोग्राफ्स हमारे साथ में। The thing is that everything that you say gets proven right because ये शेयर करने को तैयार नहीं है वो DNA रिपोर्ट। अगर आप DNA रिपोर्ट शेयर कर लो तो बिल्कुल आप उस पे आएंगे पॉइंट पे, लेकिन पहले एक और मैं चीज आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो करके। वो 2010 में जस्टिस मुखर्जी का गलती से एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, वो दे नहीं रहे थे, लेकिन गलती से उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बाइट्स आ गई, और उसमें से कुछ बाइट्स उस इंटरव्यू में से पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जिसमें वो साफ बोल रहे हैं कि मैं 100% कन्विंस हूं कि गुलामी बाबा सुभाष बोस थे। तो हमारा ये बोलना कि उन्होंने, जस्टिस मुखर्जी ने प्राइवेटली हम सबको ये बोला हुआ है, वो हवाबाजी नहीं है, क्योंकि जस्टिस मुखर्जी के बाइट्स अवेलेबल है, और वो पूरी टेप 20 मिनट की, वो जिस आदमी ने रिकॉर्ड करी है, जिस दिन वो पब्लिक करेगा, उसमें वो साफ बोल रहे हैं कि इन्होंने फॉरेंसिक धंधेबाजी की थी गवर्नमेंट के लोगों। तो दैट्स वन।
उसके बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है और ये डीएनए बड़ा टेढ़ी चीज़ है, समझाना बड़ा लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है करते करते। और क्योंकि जस्टिस मुखर्जी ने सीडीएफडी की रिपोर्ट को साइड कर दिया कि जो रिपोर्ट कंक्लूड ही नहीं कर रही उसका मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, तो दैट रिपोर्ट वाज सेट असाइड। सीएफएसएल को उन्होंने लिया और सीएफएसएल की रिपोर्ट में जो है उन्होंने उनके जो चीफ थे उस टाइम पे, डायरेक्टर जो सीएफएसएल के, उनको उन्होंने सम्मन किया कि आप आके गवाही दो मेरे सामने। एंड फॉर वट एवर रीजन ये डायरेक्टर वहाँ आने को राजी नहीं हो रहा था, और बाद में इसके नाम पे वारंट इशू हुआ, तब जाकर ये आया। और वारंट देने के बाद में फिर कुछ लोगों ने उसको क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे काफ़ी चालू था, वो उसको क्लियर कर गया, तो मुखर्जी को फिर कुछ स्थापित नहीं कर सके। हमारे में फ़र्क ये पड़ा कि हम लोगों ने फिर, जब हम लोग 2016-17 की बात है, हमको नहीं मालूम था इलेक्ट्रोफोरोग्राम ये क्या चीज़ है। मुझे क्या मालूम, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी, मुझे क्या पता है क्या चीज़ होती है। 2016-17 की बात है कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग हमें सरकार में, सिस्टम में हर जगह बैठे हुए, और ज़्यादातर लोग देश में, खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, आईबी में या पुलिस में, ये लोग आपसे मुझसे ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं, इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो बताते हैं चीज़ों का प्राइवेटली कि ये है करके। तो हमारा एक कनेक्शन सीएफएसएल कलकत्ता में निकला है, साइंटिस्ट, तो उसको बोला जाके देख क्या लिखा है इन्होंने फाइल में अंदर, तो उसने देख के बताया, उसने कहा ये तो क्या नाम है, इसमें तो उन्होंने गड़बड़ करी हुई है। तो उसने हमको बताया कि तुम इलेक्ट्रोफेरोग्राम को मांगो सूचना के अधिकार में से, और इफ दे हैव नथिंग टू हाइड दे विल गिव यू द इलेक्ट्रोफेरोग्राम, बट दे विल नॉट गिव इट टू यू बिकॉज इन्होंने गड़बड़ करी है। उसने हमको ये बताया। अब सोचने वाली बात है, अब ये आपने जो भी सवाल पूछा था उसका ही आंसर ये है कि अगर सीएफएसएल डायरेक्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं है, इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि वो कोई रहा होगा, कोई एरा गिरा नथु खेरा, कोई अयोध्या के अंदर तो 2 लाख साधु महात्मा घूमते रहते सुबह शाम, उनमें से कोई बैठा हुआ वहां पे करके, वो इस गुमनामी बाबा। कि गुमनामी बाबा के बारे में क्लेम तो यही कि नेताजी थे, और तो क्लेम उनके बारे में नहीं है, जो उल्टी सीधी बातें लोग बोलते हैं स्टैब्लिश नहीं हुई कभी। अगर हैं भी जो क्लेम भी किए, वो कोई छोट भैया आदमी था वहां पे, कोई बैठा हुआ था कोई। तो हम आपसे मांगते हैं 2016 में कि हमने सूचना के अधिकार में 17 में हम लोगों ने पहले आरटीए लगाई किसी और के नाम से कि इलेक्ट्रोफोरोग्राम की कॉपी हमको दीजिए। रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है डीएनए की, हमें सिर्फ वो एक पन्ना चाहिए, ग्राफिक चार्ट, दैट्स ऑल। रिपोर्ट है हमारे पास में, रिपोर्ट का छोड़िए आप लोग, तो दे शुड हैव गिवन टू अस। तो उन्होंने हमको मना कर दिया, कहते ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, ये उन्होंने जुमला दिया, कॉन्फिडेंशियल है। उसके बाद ये हमारा जो, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया कि दे हैव बीन फैब्रिकेटिंग, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये सभी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब तो जैसा आप कह रहे हैं, और दिखता भी है कि चाय में चीनी बहुत ज्यादा डल रही है जब बात करते हैं गांधी जी की, है ना। ज्यादा मतलब पूरा गुड़ बना दिया चाय का उन्होंने, वो तो जलेबी चाय बना का दी पूरा पूरी, गुड़ बना दिया। अब ऐसा लगता है जलेबी बन गांधी का गई नाम वो भी लेते हैं तो मतलब वो एक ही सीन मुझे तो याद आता है कि मैं पल्लू ओढ़ कर नहा रहा हूँ किसी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे और उसकी कुछ बात समझ मत में नहीं करना, वो आता है। पढ़ के और पूरा आपका डिस्कशन कहीं और चली जाएगी वो, नहीं, मैं क्योंकि बड़ी डिस्कशन कहीं और बड़ी नहीं जाने दूंगी, नहीं मैं नहीं, वापस उसका उसका आती हूँ। उसका चक्कर ये है कि उसको Why ये are they trying to hide it, Anuj ji? नो दे आर Because हाइड, revolution, देखिए वो पल्लू ओढ़ने की आपने जो बात बोली है उसमें, लेबोरेटरीज डोमिनेट करना कि भाई बाहर नहीं आनी चाहिए, उनको इनकंक्लूसिव करना। आपने राइटिंग बाहर भी मैच कराई है, आई रिमेम्बर हमने एक वीडियो किया था जो अनफॉर्चुनेटली मैं एडिट करके डाल नहीं पाई, उसमें आपने जो राइटिंग का सैंपल था उसके बारे में भी आपने बताया था कि दैट यू टुक द राइटिंग टू फॉरेन लैब्स, नॉट इंडियन लैब्स, मैं और वहां तो पर उसी वो का मैच हुई आपकी राइटिंग। आपको उसी का मैं आंसर देता हूँ कि क्यों वो नहीं हमको उन्होंने नहीं दिया 17 में। और उसके बाद 2 लाइनें करके फिर मैं आपको इस पे, आपने जो हैंडराइटिंग की बात की उस पे आता हूँ, क्योंकि वो आपको समझ में पूरा आ जाएगा उससे करके। 2019 में हमारा एक यंग दोस्त है सायोग सेन, हमारे ग्रुप का हिस्सा है, तो बड़ा ब्राइट लड़का हो, अब लंदन चला जाएगा थोड़ी देर में। तो सायक जो है उसने 2019 में वही एप्लीकेशन फाइल किया अपने हिसाब से, वो बड़ी अच्छी फाइल करता, ड्राफ्ट करता वो, और उसने वही बोला कि इलेक्ट्रोफोरोग्राम की कॉपी मेरे को दीजिए। तो इन्होंने साहब को आंसर दिया, हमें दिया आंसर 17 में, पहले भी हमने फाइल की थी, किसी और दोस्तों के माध्यम से की थी हम लोगों ने, सायक ने अपने आप करी 19 एक में, तो मिनट, 17 आप में किसी और के माध्यम से क्यों करवा रहे हैं, अपने माध्यम से क्यों नहीं नहीं? नहीं नहीं आपने नहीं ये नहीं अपने नहीं नहीं, मेरे अपने नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन कई बार होता है कि नाम देके वो लोग घबरा जाते हैं हमारा कई बार, ओह, तो अच्छा, डिटेल मतलब इन्फॉर्मेशन आपके तो। नाम का खौफ और चल रहा है अब। और दूसरा ये होता है कि लोकल आदमी के नाम से अच्छा रहता है कि कलकत्ता की बात कलकत्ता, वो दिल्ली विल्ली के चक्कर में क्यों पड़े, और फर्क पड़ता है। और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे और दोस्त हैं, तो काम से मतलब है, वो पड़ता नहीं किसके नाम से हो करके। तो 17 में इन्होंने जो आंसर दिया था कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं कह सकते,
ठीक है, और थर्ड पार्टी विल बी द होम मिनिस्ट्री हियर, तो नहीं देंगे आपको। दैट मीन्स होम मिनिस्ट्री डज नॉट वांट दिस थिंग टू कम आउट। जब सायक ने 2019 में एप्लीकेशन दायर करी तो उन्होंने आंसर दिया कि द इलेक्ट्रोफेरोग्राम इज अनअवेलेबल, व्हिच मींस इट इज मिसिंग और डिस्ट्रॉयड। तो जैसे ये खबर निकल के आती है तो 19 में हम लोगों ने मीडिया में हंगामा मचा दिया, तो उसको लेकर के IBN के अंदर अच्छा डिबेट हुई, अर्नब के शो में डिबेट हुआ और जगह पे हुआ करते करते, तो जब वो और मीडिया में खबर, तो वो CFS वाले थोड़े घबरा गए, तो उन्होंने फटाक से उन्होंने 5-7 दिन में एक और नया इशू कर दिया स्टेटमेंट कि अवेलेबल है लेकिन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। फिर सायक सेन ने सडनली अब फिर 2 साल बाद फिर से एप्लीकेशन डाल दी। इस बार उन्होंने सायक को 3 रीजन दिए। पहला तो वही दिया कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ पैसे पूसे का चक्कर है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, और तीसरा जो पहला रीजन दिया ना देने का, वो उन्होंने जो क्लॉज को साइड किया सूचना के अधिकार में 81A जो क्लॉज है, वो क्लॉज नेशनल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन से कंसर्न होती है। तो नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज, सो देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स। अब उसका आंसर जो आपने पूछा कि वो हैंडराइटिंग है क्यों नहीं दिया, भाई इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज कि हैंडराइटिंग में क्या हुआ, कैसे वहां पे घपलेबाजी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। वहां पे कैसे क्लियर हुआ कि गुमनामी बाबा के हैंडराइटिंग के, अब ये मैं आपको अलग ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ, फिर आपको दोनों को इंटरपोलेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी होने वाली है वो मुख्य गृह मंत्रालय को अवेलेबल है, इसीलिए वो सोच समझ के हमको नहीं दे रहे, उनको मालूम है कि ये लोग हमारा बंडा फोड़ेंगे अगर हमने ये दे दिया तो। हैंडराइटिंग में हमने क्या कहा, हैंडराइटिंग की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती, DNA की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा खराब है इनके लिए। अगर उसकी रिपोर्ट हमने जो काम हैंडराइटिंग में किया, अगर हम लोग DNA में कर देंगे तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। तो वहाँ से जस्टिस मुखर्जी आयोग ने 2001 में गुमनामी बाबा के इंग्लिश में और बांग्ला के सैंपल्स को उठाया हैंडराइटिंग के, तो वहाँ सैंपल थे इंग्लिश में, हिंदी में थे बहुत सारे, संस्कृत में थे, कई जगह तो उन्होंने और फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लैटिन वगैरह इसमें करके। तो नीता जी की हिंदी उनको लिखने नहीं आती थी, और गुमनामी बाबा को भी लिखने, उससे मेरे ख्याल से जो यूपी में आके सीख ली कि वो, लेकिन वो ऐसी हिंदी के पल्ले पड़ेगी नहीं आपको, आधे संस्कृत के वर्ड्स हैं, बांग्ला के वर्ड्स हैं, उर्दू के वर्ड्स हैं, लैटिन डाल रखी बीच में करके, लिखने का स्टाइल बड़ा, कोई आदमी जैसे अंग्रेजी में सोचता है और हिंदी में लिखता है, उसकी पूरे फ्रेजेस बना रखे हैं, कोलन सेमी कोलन, हिंदी में नहीं लगता है सेमी कोलन कोलन क्या होते हैं, तो दिखाई दे रहा है कि वो आदमी को हिंदी बोलनी आती है, उसकी बेसिक लैंग्वेज जो अंग्रेजी है वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। तो एनीवे नीता जी के हाथ के लेके हिंदी के सैंपल अवेलेबल मैं तो देखे नहीं आ सकते, तो उसको छोड़ दिया कमीशन ने। हैंडराइटिंग उनकी बांग्ला में गुमनामी बाबा की और इंग्लिश में ले गए, और उसको उन्होंने वहां जाकर के टेस्ट कराने का सोचना शुरू कर दिया। इन द मीन वाइल मैं वहां मौजूद था, मैंने सैंपल उठा करके मैंने जाकर के उन सैंपल्स को, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था और हम लोगों ने इंक्वायरी हम लोग कर रहे थे, और मैंने वहाँ जाकर के, उस जमाने में भारत के सबसे बड़े जो DNA एक्सपर्ट है बीलाल कपूर जी नहीं रहे, सबसे बड़ी नौकरी जो भारत देश में सरकार के अंदर एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट करता है उसे बोलते हैं GEQD शिमला, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। कम से कम उस टाइम, तभी से थोड़ा चेंज हो गया थोड़े अभी 2-4 साल में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजों के ज़माने से सबसे इंपॉर्टेंट जो हैंडराइटिंग फॉर्जरी चेकिंग करने की जो बात होती है वो शिमला में GEQD का ऑफिस होता है। तो कपूर साहब उसके बॉस थे, रिनाउंड अपने DNA हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, और काफ़ी उनको अवार्ड मिले थे सरकार से, उन्होंने बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में थे, डायरेक्टर लेवल ऊपर से रिटायर हुए थे जाकर के, तो उनको सारे केसेस रिटायरमेंट के बाद में आया करते थे। तो ही वाज द टॉप मोस्ट एक्सपर्ट, उनको इंडियन साइंस कांग्रेस में उनको लाइफ टाइम अवार्ड मिला था। तो मुझे उनके 3-4 IPS के लोगों ने उनके बारे में बताया था, सीनियर अफसर्स ने, कि लाल साहब के बहुत, लाल साहब सबसे बड़े हैंडराइटिंग के हमारे में लेजेंड है भारत के अंदर। तो लाल साहब को मैंने गुमनामी बाबा के, और लाल साहब इज नॉट एन इंस्पायर्ड पार्टी, ही वाज अ प्राइवेट मैन, आई अप्रोच्ड हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, बड़ी पापड़ बेलने पड़े थे, एकदम से वो आदमी राजी नहीं हो रहा था, उसको भी डर लग रहा था कि क्या केस हमारे सामने एकदम से लेकर आ गया, और बात खैर वो अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने बाद में जाकर के उनको, जब मैंने सैंपल दिए नेताजी की हैंडराइटिंग के सैंपल मैंने निकाले नेशनल आर्काइव से, यहाँ से गुमनामी बाबा के सैंपल दिए उनको मैंने अंग्रेजी में और करके, तो उन्होंने तो मुझे बाद में देख करके बोला कि मेरी 40 साल की जिंदगी ऐसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अगर बर्बाद है, अगर ये आदमी कोई और निकल जाए। फिर हमने हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी, क्योंकि हमारे पास में सैंपल्स लिमिटेड थे, तो उन्होंने लिमिटेड उससे बोला कि ये आदमी सुभाष बोस है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। तो उस जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने फिर 3 टेस्ट ऑर्डर किए।
एक तो उन्होंने इसी मिस्टर लाल को हायर किया, मुखर्जी आयोग ने, जिस लाल को मैं लेकर आया था, लाल साहब को, और उनको उन्होंने ज़्यादा सैंपल दिए, ओरिजिनल सैंपल दिए, बहुत सारे सैंपल दिए, और ये सैंपल उन्होंने 2 एक्सपर्ट्स को और दिखाए, एक आपकी एफएसएल कलकत्ता और जीईक्यूडी शिमला। तो 3 रिपोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की जनरेट होती है। ना हैंडराइटिंग की रिपोर्ट जो होती है उसमें एक आपको बेसिक ध्यान रखना है आपके, कि खासकर ऐसे केसेस जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और अदरवाइज ऑल्सो आप उम्मीद करते हैं कि एक्सपर्ट अपने आपको रीजनिंग दे कि क्यों ये हैंडराइटिंग मैच कर रही है या मैच नहीं कर रही है। सिर्फ ये लिख देना एक लाइन में कि मैच नहीं कर रही है या कर रही है, वो मजाक होगा। और वही हुआ, एफएसएल की जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर एस के मंडल की, जो बाद में एफएसएल के डायरेक्टर बने हैं, रिटायर हो गए अब तो, उन्होंने 2 पन्ने की रिपोर्ट दी। पहले पन्ने में अपना नाम पता, जो एक फॉर्मेट होता है कि एड्रेस दिया लैब का, और सेकंड पन्ने में कहा जी हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। अपने जो जीयूक्यूडी शिमला की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी डिटेल है, उसमें 4-5 पन्ने हैं, थोड़ा सा रीजनिंग दी हुई है, और थोड़े से उन्होंने 5-10 उन्होंने अल्फाबेट चूज कर रखे अंग्रेजी के, कि ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, गुमनामी बाबा में फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसे करके रहे। लेकिन लाल साहब ने काफ़ी डिटेल रिपोर्ट बना के दी, 10-15 पन्ने की इंग्लिश में, 10-15 की बंगला में, और उन्होंने हर एक सिंगल अल्फाबेट और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को लिया और उनको लेके उनकी फोटोग्राफ्स खींची बड़ी बड़ी, और वो इतने बड़े बड़े उनके बनाए उन्होंने एग्जिबिट्स, बहुत बड़े बड़े, मतलब अभी भी मैंने खुद अपनी आंखों से, मतलब वो बक्सों में लेकर आया जब कमीशन ने गवाही हुई उनकी। उसमें इंग्लिश में अल्फाबेट ए गुलामी बाबा, अल्फाबेट ए सुभाष बोस, ऐसे बंगला में अल्फाबेट्स, और ये और तरीके, उसने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया 100% एक ही आदमी है। तो लाल साहब की रिपोर्ट लाख गुना उनसे अच्छी थी। अब प्रॉब्लम कमीशन के सामने हो गया, एक तो डीएनए का प्रॉब्लम आता है कि डीएनए मैच नहीं कर रहा, दूसरा ये कि लाल साहब की एक रिपोर्ट है, यहाँ कहने को जैसी भी हो घटिया रिपोर्ट है, लेकिन 2 रिपोर्ट है सरकारी। तो वहाँ पे हम लोग एक्टिव हुए, मैं और मेरा दोस्त चंदू चुरघोष, और वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिला जो भारत के बाहर जो विदेश में हमारे लोग हैं उनके साथ। मैं अमेरिका में लेक्चर के लिए गया था 2015-16 में, मुझे याद नहीं 16 में, हाँ शायद 16 की बात होगी, सेकंड टाइम में। तो मुझे वहाँ पे एक दीपक निजावन जी ने मेरा प्रोग्राम होस्ट किया था, वहाँ पे उन्होंने 2 बार किया कंटैकी में। दीपक जी चले गए एकदम से सडनली कैंसर से, तो दीपक जी ने मुझे ऑफर किया कि अनुज, मुझे अभी याद है वो दिन, वो हम कंटैकी में एयरपोर्ट में बैठे थे कि व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी हेल्प यू, एंड डीएनए करवाएं यहाँ पे करके। मैंने कहा जी ऐसा है सर, ये तो डीएनए तो हमारे पास सैंपल नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग के सैंपल हमारे पास में, कि डीएनए का सैंपल गवर्नमेंट की कस्टडी में, गवर्नमेंट हमको देगी नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग के सैंपल हमारे पास गुमनामी बाबा के और नीता जी के पड़े हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ से एक्सपर्ट ढूंढो यहाँ पे कोई आप अमेरिका में। तो दीपक जी और एक और मित्र उस टाइम पे मैरीलैंड में थे, अभिषेक बोस, दोनों अमेरिकन सिटीजन थे। उन्होंने बोला कि अभिषेक ने और इन दोनों ने मिल करके कुछ एक्सपर्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया हैंडराइटिंग के टॉप, उसमें से एक हमने कर्ट बैगेट को सेलेक्ट किया कि इनको हम देंगे। दीपक जी ने उनसे डीलिंग करी सारी, कर्ट से, हम बीच में नहीं पड़े। अभी भी कर्ट साहब मुझे नहीं जानते ख्याल से। उसको उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया इस केस के बारे में, उनको सिर्फ सैंपल ए और सैंपल बी को टेस्ट करने को बोला। तो आप ये कंट्रास्ट कीजिए कि डॉक्टर एस के मंडल कलकत्ता एफएसएल के 2 पन्ने की रिपोर्ट दे रहा है कि ये आदमी सुभाष बोस नहीं है, कोई रीजन नहीं दे रहा, और कर्ट बैगेट बैठे हैं टेक्सास के अंदर अमेरिका में, और वो आदमी 40-45 पन्ने की रिपोर्ट दे करके और उसमें डिटेल में समझा रहा है कि ये कारण है, ये इस रीजन से, और ये फोटो है, ये उनका अल्फाबेट है, ये है, कि ये सेम पर्सन है। तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी आदमी, खासकर हमारे साहब लोग, हमारे बड़े बड़े साहब जो हमारे देश में यहाँ बैठे हैं बड़ी बड़ी पोजीशंस में, जिनके सारा खानदान अमेरिका में सेटल हो रखा है, ऑब्वियसली वो कर्ट की रिपोर्ट को मानेंगे, पागल तो वो है नहीं। देसी रिपोर्ट को कौन मानता है? आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ कोई किसी को खांसी जुकाम हो जाएगा तो ये लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं इलाज कराने के लिए, साहब लोग हमारे। हमको तो बोलते हैं कि कोटे वाले डॉक्टर के पास में जाओ आप लोग, खुद तो ये जाते हैं सारे यूरोप अमेरिका में टेस्टिंग के लिए। तो कोई आदमी देसी रिपोर्टों को घास नहीं डालता, सबको पता है। तो हमने उसके बाद में एक और एक्सपर्ट को पकड़ा, अशोक कश्यप जी, दिल्ली में बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैंडराइटिंग के, उन्होंने भी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है डिटेल में। तो आपके पास, अब हमारे पास में, हमने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि हैंडराइटिंग की रिपोर्ट्स में धांधलीबाजी हुई थी, क्योंकि हमारे पास में सरकारी 3rd क्लास रिपोर्टों के कंपेयर में 3 बहुत हाई लेवल की जबरदस्त रिपोर्टें हैं जो पॉजिटिव है। तो वी हैव अ क्लियर एज एंड वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि दैट रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट। So now the CFSL Calcutta must be aware what we have done. आज वो इलेक्ट्रोफेरोग्राम अगर हमको मिल जाता है,
उस इलेक्ट्रोफेरोग्राम को मैं भारत के और मैं और चंद्रचूड़ भारत के और इंग्लैंड और अमेरिका के जाने माने एक्सपर्ट्स को दिखाने का इरादा रखते हैं, और मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, इनका भांडा फूटेगा क्योंकि इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है जानबूझ करके पॉलिटिकल प्रेशर में आकर। Political pressure both from Congress and BJP. That's what is From the government of India. From the government of India, of course, both from the BJP and Congress. Yes. Both from because the government. generally यही दोनों रही हैं. तो what can be the reason, Anuj sir? The reason वो ये ना वो देखिए जब reports have been fudged. Is it some geopolitical angle, relations with countries, or is it due to some other internal angles? It has to be a multiple. देखिए कोई भी अब ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है पूरे केस में, और एक बहुत बड़ा कारण आपने जो सवाल पूछा, आपने बोला कि ये इशू वहीं का वहीं क्यों है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर डिबेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो फॉर्मेट है मेन स्ट्रीम मीडिया का कि वो 6 आदमी बैठ जाएंगे एक पैनल के अंदर, सारे लड़ाई करेंगे, उसमें और इतना हमें बताने का समय नहीं मिल पा रहा। जूते चप्पल नहीं चलते, बाकी वो 6 पैनलिस्ट चप्पल भी कराने को मैं राजी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप समय तो दो बात करने का। 1 घंटे का, आधे घंटे का प्रोग्राम मैक्सिमम होता है, 1 घंटे का, उसमें ऐड होते हैं, उसको बेसिकली वो 40-45 मिनट का प्रोग्राम होता है, 6 आदमी होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हमको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि CFSL की जो खबर अभी आई है, तो रिपब्लिक बांग्ला में एक प्रोग्राम हुआ उसको लेकर के 1 घंटे का, सबसे बढ़िया वही हुआ था, मतलब कि कम से कम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इसमें अटेंशन उनको दिया। पर उसमें हुआ क्या, उसमें कांग्रेस के व्यक्ति हैं, उसमें बीजेपी का है, उसमें TMC का। तो 1 घंटे की डिबेट थी, 45 मिनट की डिबेट होती है, 15 मिनट के ऐड निकल जाते हैं, और वो बीजेपी वाले जो है उसने आंसर दिया कि हमने तो मोदी जी ने ये काम किया, मोदी जी ने वो काम किया, उन्होंने झंडा लगा दिया, उन्होंने ये लगा दिया, वो 10 मिनट वो खा गया। वो जो दूसरे वाले पार्टी वाले कह रहे हैं कि RSS का कोई रोल ही नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो मैं इस बात से बिल्कुल तक आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट कि वो इशू अभी नहीं है इस टाइम पे। RSS में रोल, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपकी मेरी जो बात हो रही है, तो हमारी बिल्कुल फोकस बात हो रही है इस केस के ऊपर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं DNA टेस्टिंग के ऊपर, लेकिन वो क्या करते हैं पार्टी प्रवक्ता, उनको ABCD केस की नहीं पता, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, वो इधर उधर के जुमले बीच में ले आते हैं। पंडित जी का भी, पंडित जी नहीं है, पंडित जी मर चुके हैं, पंडित जी अभी जिंदा नहीं है, DNA वाले के साथ पंडित जी का कोई हाथ नहीं है। तो आप बेमतलब पे वो पंडित जी की बात ले आएंगे या उसकी बात ले आएंगे, यहाँ पे उसको ले आएंगे, और वहां से वो आदमी अटैक करेगा। तो वो पूरी जो डिबेट थी अगर आप देखेंगे तो 45 मिनट की डिबेट में 35 मिनट तो ये लोग खा गए। तो 5 मिनट में जिस बात को मैं पिछले आपको 1 घंटे में समझा रहा हूँ लेयर बाय लेयर, या तो आप मेरी बात सीधा सपाट आप मेरी बात मान लीजिए कि वो सुभाष बोस थे, सरकार ने जानबूझ करके DNA और हैंडराइटिंग टेस्ट को चेंज की रिपोर्टों को गलत दिया है। फिर आप बोलेंगे मैं नहीं मानता आपकी बात, इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हो? तो आप नहीं मानते तो मुझे टाइम दो ना बताने का, एक्सप्लेन करने का, वो आप देते नहीं मुझे। सारा का सारा आप 6 बंदे लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह चैनल में जाकर के। इसीलिए ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा। और दूसरा ये है कि भारत के लोगों में एक फीलिंग आ गई है फिल्में देख देख करके कि आपकी जैसे फिल्में होती है 2-2 घंटे की, शाहरुख खान की लाइफ भी ऐसी होती है कि आप 1 घंटे में गए, 1 घंटे में आपने गर्लफ्रेंड को डेट पे ले गए, फिर आपकी शादी होगी 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपके ये हो गए। यार ऐसे नहीं होता लाइफ के अंदर, 50 पेज होते हैं लाइफ में। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लाइफ में हर चीजों के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं होते। लाइफ इज ऑल, स्पेशली व्हेन इट कंसर्न्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू लाइक सुभाष बोस, और जिसमें अलग अलग टाइम फ्रेम पड़ रहे हैं बीच में कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, सिचुएशन वहाँ पे कैसी थी, फिर आपको आज के समय का ध्यान रखना है कि आज का माहौल बदल चुका है। तो उसमें क्या होता है कि वो आंसर, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के जो आंसर है वो बहुत डिटेल में आने पड़ेंगे और आपको अलग अलग में देखना पड़ेगा। तो क्यों सरकार नेताजी वाले इशू को बाहर नहीं कर रही है, उसके मल्टीपल कारण, उसमें से जियोपॉलिटिकल कारण जैसे आपने बताया आपने, तो वो कॉम्प्लेक्स है, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि इस बात का आंसर नहीं मिल रहा कि क्यों सरकार ये नहीं कर रही है, लोग दूसरे एविडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है कि कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कभी वोट मांगती नहीं है, ना उनका नाम यूज करती है। दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द डिफेंसिव। बीजेपी ठीक है, आई एक्चुअली एडमायर जो वो कर रहे हैं, बट जो मेन मुद्दा है, मतलब वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, but at the same time they are not, why are they not recognizing? So that means there are relations with other countries at stake. That is the reason they are not taking up this, because otherwise I think they should have been on the forefront doing this. They should have been the one. क्योंकि मेरे लिए वॉर क्राइम्स और दूसरे इश्यूज को समझाना बड़ा मुश्किल होगा अब इस स्थिति के लोगों को, खासकर भारत के लोगों को इन चीजों की जीरो अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि कारण प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे ये प्रॉब्लम है होने वाली है, एक प्रॉब्लम, जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में पिछले 70-80 साल से महात्मा गांधी ब्रांड को प्रमोट किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो रुपए की इन्वेस्टमेंट हर साल की होती है।
और लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट से करके नाम लेके के गांधी के नाम के भजन गा के बहुत नाम और धन कमाया उसी उसी उसको लेकर के। आज आप नेताजी की सच्चाई बता दोगे पब्लिक को, ये एक तो इस पर लेके क्लेश होगा पूरे देश में, अभी भी क्लेश होगा, घर घर में क्लेश होगा। क्योंकि जो मेरे खुद घर में मेरे खुद रिश्तेदार जो मेरे जो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी को, मुझे पसंद नहीं करते इस कारण की जो मैं बातें बोलता हूँ। तो ये इतना आसान मुद्दा नहीं है, घर घर में क्लेश हो जाएगा। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ, मेरे खुद साथ हो चुके हैं कि अपने रिश्तेदार जो उस पार्टी को सपोर्ट करता है, अपने रिश्तेदार को जो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता उससे वो बात नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये होने वाली कि सच्चाई जहां आपने बताई, सारी बात घूम फिर के निकल के यही आएगी कि देश को आज़ादी दिलाई सुभाष बोस ने और सारा क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया गांधी जी के नाम पे। तो जनता तो बोलेगी भैया उसी के नाम पे करो फिर, अब जिसका नाम, एक बड़ी गलत, आपने बड़ा महापाप किया आप लोगों ने कि जिसने इंडिपेंडेंस दिलाई है उसको तो आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, वो बेचारा वो कुत्ते की जिंदगी जिया बैठ करके यहाँ पे, और उसके दूसरे नाम पे आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि जो हमारे जो साहब लोग हैं, जिनका वो कौन सा गाना था राज कपूर का कि ये जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, वो दिल भी हिंदुस्तानी, दिल्ली भी उनका आधा अंग्रेज बना हुआ उनका, जिन्होंने पूरा खानदान बाहर सेट कर दिया उन लोगों ने। अब वो कह रहे हैं हम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, गांधी के नाम का इतना बैंड बजा दिया, अब तो इसको पीछे हम खींच ही नहीं सकते हम इसको। तो सरकार के लिए वो बैकअप करना बड़ा मुश्किल है, गांधी को कैसे डिसोन कर देगी एंगल हो गवर्नमेंट। सकता है और दूसरा एंगल हो सकता है कि देखिए जिस तरीके से आपने और मैंने एक पहले वीडियो किया था, इफ यू रिमेम्बर, तकरीबन 6-7 महीने पहले, उस वक्त हमने एक एंगल और कवर किया था जो इनकी बाहर की मूवमेंट थी, जो फॉरेन रिलेशंस थे, दे आल्सो वर लिटिल नॉट नोन टू पीपल, सो वहां पर भी थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। नहीं ग्रे एरिया नहीं, बड़े क्लियर एरिया, वो क्लियर एरिया, जैसे आपको मैं बताया फॉर एग्जांपल, जैसे कि गुमनामी बाबा को पूछा गया था क्यों अब निकल के नहीं आ रहा, अलग अलग उन्होंने अलग अलग टाइम पे आंसर दिए। तो उसमें से उन्होंने एक कारण बताया था उन्होंने कि इन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है इसमें एक इन्होंने सीक्रेट प्रोटोकॉल किया था कि ये मुझे हैंड ओवर करेंगे अंग्रेजों को, मेरे पे चार्जेस लगाएंगे। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम ये आ रही है कि 50-60-70 साल से भारत सरकार ने हमको कभी नहीं बताया कि ट्रांसफर ऑफ पावर में सीक्रेट क्लॉजेस थी। आज हमको मालूम चल गया कि ट्रांसफर ऑफ पावर सीक्रेट क्लॉजेस थी, हमें झूठ बोला गया। क्योंकि आज वो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग बोल तो रहे हैं कि हमको पहले, जैसे हमें नहीं बताया गया, जहाँ तक मुझे पता आपको पता होगा, हमें कभी नहीं बताया गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे देश की फौज जो थी अंग्रेजों के हवाले में थी, हमारी आईबी अंग्रेजों को रिपोर्ट कर रही थी, हमारी फौज अंग्रेजों के अंडर में थी इंडिपेंडेंस के बाद। 47 में आप आज़ाद हुए, 47 में आज़ाद हुए, आपका आर्मी का पहला चीफ जो बना है वो 48 में जाके बना है इंडियन, करियप्पा, पहले तो अंग्रेजी था। आप जब कश्मीर में लड़ने गए थे पाकिस्तान से, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को क्या हिंदुस्तानी था, अंग्रेज थे। उसके अलावा आपकी नेवी एयरफोर्स के चीफ आपके 55 तक आपके अंग्रेज थे, अंग्रेज, मैं एंग्लो इंडियंस की बात नहीं कर रहा, एंग्लो इंडियंस हमारे अपने लोग हैं। फिर आपके नेवी 1958 में आपका पहले इंडियन चीफ बना एयरफोर्स नेवी का। तो आपकी इफेक्टिवली आपकी मिलिट्री उनके हाथ में है इंडिपेंडेंस के बाद में, आपकी आईबी उनको रिपोर्ट कर रही है 68 तक लंदन इनको। ऊपर से आपने यहाँ पे दिल्ली के बीचों बीच में अंग्रेज के राजा की मूर्ति लगा रखी है जिसको हटाने का आपका इरादा नहीं है। नेवी के झंडे में आपने क्रॉस लगा रखा, कहने का अभी भी बड़ा बोलना पड़ा, तब जाके सो कॉल्ड हिंदुत्व गवर्नमेंट ने जाके उसको 6 साल बाद जाके हटाया, और अभी भी भरा पड़ा पूरे नई दिल्ली के अंदर। अभी भी जाइए राष्ट्रपति भवन के सामने क्रॉस लगा रखा है इन्होंने, हटा के दिखाओ हिम्मत है तो ऐसा है जी। उसके बाद में फिर अलग अलग चीजें, अब ये जो जितने इन्होंने जुमले दिए इन्होंने इनको इंडिपेंडेंस के बाद में कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इंग्लैंड के राजा के तो जन्मदिन पे हमारा राष्ट्रपति जाके सलूम हाजिरी लगाता था हमारे ब्रिटिश हाई कमीशन में जाकर के, आज के दिन में करेगा भारत का राष्ट्रपति जाके जाएगा हाई कमीशन में हाजिरी लगाने के लिए? इंग्लैंड का राजा बन रहा तो तुम मरने के बाद तुम दिल्ली के चर्च में उसकी सेरेमनी करो, तो पंडित जी वहां जा रहे हैं। और ये इतना दोगला गेम खेल रहे हैं कांग्रेस के लोग, इन्होंने खेला, सरकार के लोगों ने। हमें ये कोई और कहानी देते हैं, अंग्रेजों को कहानी कुछ और देते हैं लोग जाकर के। वहां तो बोलते हैं कि हम कॉमनवेल्थ में आपके साथ नहीं है, और हमें बोलते हैं कि हमने तो अंग्रेजों को भगा दिया मार के। अंग्रेजों ने तो बड़े बड़े गलत काम किए थे, अत्याचार किए थे, हमने भगा दिया उनको, गांधी जी ने भगा दिया उनको, हिंसा से भगा दिया, और वहां जाके घुस गए कॉमनवेल्थ में जाकर के लोग। तो ये दोगली दोगली बातें कर रहे हैं, समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी कोई खुन्नस अंग्रेजों के साथ में नहीं है, मेरी है, अंग्रेजों को मालूम है, मेरी है, मेरे देश पर राज किया है, लूटा है, मेरी खुन्नस, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी खुन्नस अभी के लोगों के साथ में नहीं, कि उनके बाप दादाओं के क्राइम को अनलेस अनटिल उसको डिफेंड ना करे। जैसे मैं लंदन में गया तो लोग 2-4 लोगों ने मुझे बताया, तो वो मुझे कह रहे यार हमें क्यों ब्लेम ठोक रहे हो, हम लोग तो खुद छोटे छोटे लोग हैं, मैं
मैं ये नहीं, काम दैट्स करता हूँ, राइट। मेरे हाँ, मेरे किसी फादर के वकील थे, कर्मों मेरे की फादर सज़ा किसी वकील और थे, को नहीं दे उससे सकते। पहले मेरा ग्रैंडफादर भी छोटा-मोटा काम करता था कि जो लोग आपके देश में लूटने गए थे, वो एक रॉयल फैमिली के लोग थे, उन्होंने लूटा, हम लोगों ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा। ट्रू। और वेरी फैक्ट, आज के ज़माने में आप देखेंगे उन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया, ये भी उन्होंने अपने पाप बहुत सारे माफ़ करवा लिए। तो उनका भी भगवान भला करे कि उन्होंने एक अच्छा काम उनके हाथ से हो गया। तो तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे, उनके गलत काम को डिफेंड नहीं करेंगे, वो बात अलग है। और लेकिन है कि ये दोगली बातें कर रहे हैं, इंग्लैंड में कुछ और लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप हमारा को ये बताना हाँ, चाहिए पहले अंग्रेजों को सोशल मीडिया कि नहीं था, इनको आपको एक्सपोज़ आपको ये करने के लिए। बैड माउथ करते हैं, आपको गाली गलौज दी जाती है, सब जगह बोला जाता है कि आप लोगों ने अत्याचार किए, ये किया वो किया, और आपको हमने भगा दिया हिंसा से। तो ये गलत बात है, आपने किसी को नहीं भगाया, वो अपने आप गए थे यहाँ से, उनका ट्रांसफर पावर हुआ, खुद अपने साहब लोग हैं, अपने तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ से गए थे वो लोग, आपने किसी को नहीं भगाया। जी। तो ये जुमले दे के इन्होंने बैठ के हमको ये जुमले पढ़ाए कि भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब निकल के आ रहा है कि झंडे उन्होंने उनके देती लगा हमें रखे हैं, आज़ादी बिना खड्ग का भीना बिना ढाल, खड़क बिना मतलब ढाल, वो तो है। और भी बहुत सारे गाने, मुझे गाने का नाम याद नहीं आ रहा है, एक बड़ा मशहूर गाना, बहुत सारे गाने थे। वो दिलीप कुमार फिल्म थी लीडर, विजंता विजंती माला का गाना था ना कि वो अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ गवा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। तुमने कितने सर कटा लिए भैया? अब लगता है पलट के देखते तो ऐसा लगता है कि क्या बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफी की बात है, तुमने राजा की मूर्ति दिल्ली में लगा रखी है, कमल तो तुम घुसड़े हुए हो, प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा अंग्रेज की रानी की शपथ लेके आ रहा है, किसको तुमने भगा दिया बैठ करके? जी। आज जो तुम्हारे में अनुसे इतनी हिम्मत आ गई है, आज ये कह रहे हैं कि हमें 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 अंग्रेजों से इतना लूट के माफी, तुम लोग 50 साल से तुम लोग क्या कर रहे थे? पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने इनको? आपको आज याद आ रहा है कि अंग्रेजों ने लूटा आप लोग को? पहले क्यों नहीं डिमांड किया आप लोगों को? आज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वॉर क्राइम्स का। आपको लगता है कि वॉर क्राइम्स सिर्फ जापान में और यूरोप में हुए थे? हमारे यहाँ वॉर क्राइम्स नहीं हुए। आपने आईएनए के लोगों को नीलगंज में रातों रात गोली से 1000 लोग को मारा है। इज दैट नॉट अ वॉर क्राइम? अगर यही चीज यूरोप में होती है तो आज के दिन में कोर्ट में केस चलता। क्यों ना इंडियन आर्मी उसको आंसर दे कि तुम लोगों ने गोली चलाई है, हमने हमने हुक्म पे अंग्रेजों के। दैट इज द केस ऑफ वॉर क्राइम। आपने वॉर क्राइम्स किया, आपने आईएनए के प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों मारा आप लोगों ने गोली से? दैट्स अ वॉर क्राइम। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे करेगी? वही इंडियन आर्मी उसमें इन्वॉल्व थी वॉर क्राइम्स के अंदर। ये तो छाती ठोक के बोलते हैं कि हम तो अंग्रेजों के साथ में थे। ये तो अभी भी हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल में सुभाष बोस का नाम लेने को राजी नहीं है। दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट हिम। अभी भी आप देखिए, मत कीजिए, नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई है वो नेशनल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल सामने लगाई गई है। मुझे एक फोटो दिखा दो चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने उसको सल्यूट जाके मारा उसको, नहीं मारते अभी भी अंग्रेज। शो मी a single picture of the chief of the army staff going and saluting that statue। बिल्कुल नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ लगी है, आप एंट्री उस मूर्ति से करते हैं, बिल्कुल सो यू सामने मीन टू लगी है। से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी अभी भी जो नहीं, वो भावनाएँ नहीं हैं वो करेगा हाँ, लेकिन गांधी जी के कब्र पे जाके सलूट मार देंगे। जो अहिंसा का पुजारी है उसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो। इतनी महात्मा गांधी की ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं। इन्होंने डिफेंस एग्जीबिशन लगा दिया गांधीनगर के अंदर। जो महात्मा गांधी जिंदगी भर बोल बोल के मर गए कि अहिंसा पे आपने चलना है, फौज नहीं चाहिए देश के अंदर, आप डिफेंस एग्जीबिशन लगा रहे हैं, एक्सपो लगा रहे हैं गांधीनगर के अंदर। 1950 के दशक में जब हमारा कंप्लेन की गई, आचार्य कृपलानी ने पार्लियामेंट में बोला कि आप लोगों ने रक्षा का बजट बढ़ा दिया, गांधी जी की आत्मा को दुख हो रहा होगा। अच्छी बात है, थोड़ा और ज़्यादा दुःख होना ये चाहिए दुख उनके गलत है लिए। ना, ये धकोस्तेबाजी कुछ कर रहे हो ना, हमारा पैसा फूक रहे हैं, डिफेंस एग्जीबिशन लगाई है वहां पे, लेकिन आपने गांधी आजामी क्यों लगाया? गांधी जी के खिलाफ में थे उसके। पूरा जी, गुजरात में बेवड़ा बंद है, आप दारू नहीं पी सकते क्योंकि गांधी जी का जन्म स्थान है वो पूरा स्टेट। तो उस टाइम में तो गांधी जी की शराब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी अहिंसा, नॉन वायलेंस नहीं करनी, वायलेंस नहीं करने की, फौज के खिलाफ में थे वो लोग। गांधी भक्त फौज को डिफेंड करने के चक्कर में थे। ये जी, तो बेचारे लोगों पैसे के भूखे, इनको तो कुछ चिंता, इनको तो विश्व शांति की चिंता है लोगों को, सब लोगों को। जी। अनुज उनके सर नाम पे आप ये कर रहे हो, तो ये ढकोसतेबाजी सारी की सारी खुलेगी, क्योंकि हमारे देश के लोगों को गांधी जी का ज्ञान नहीं है अभी तक। जी, गांधी जी के लाइफ के 3 मोटे मोटे, अगर कोई भी आदमी अपने आप को गांधी जी का भक्त होने का दावा करता है, या सपोर्ट जो सारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं आजकल, 3 प्रिंसिपल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सच बोलना हमेशा से, सच्चाई, ट्रुथ। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है अंग्रेजों के जमाने का? क्यों ना हमारी कैबिनेट की मीटिंग को हम लाइव स्ट्रीमिंग, हमने किसी का बुरा करना नहीं, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग करो पूरी कैबिनेट की मीटिंग को, दुनिया देखिए आप कैसे खुले के काम करते हैं। दूसरा, वो पहला जो है अहिंसा।
गांधी जी ने कभी फौज में कोई, गांधी जी का मुझे एक भक्त का नाम गिना दो, एक भी नोटेबल गांधीयन लीडर जो फौज में गया, मुझे नाम बता दीजिए, मैं नाम चेंज कर लूंगा। गांधी जी ने कब सपोर्ट किया निनामी को? क्या गांधी जी ने, जब जब करियप्पा साहब उनके पास में आए थे कश्मीर में जाने से पहले, तो गांधी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान से अहिंसा के तौर पे आप उनसे, जी, हम उनके आगे लेट जाते कि आओ हमारा गला काट दो। वो ठीक है, तो मैं फॉलो करता हूँ। ये तो ये ये गांधी आप जी पे नहीं सवाल, था बिकॉज़ एक्चुअली आई ये डोंट एग्री ये विद अ लॉट ये ऑफ हिज सवाल आप स्टाफ। संघियों से, ये सवाल आप जाके संघियों से पूछो और बीजेपी के लोगों से पूछो जो गांधी भक्ति कर रहे हैं कि जुम्मा जुम्मा वो 50 चाय साल में हमारे देश चीनी में बढ़ा आजाद रहे हुए हैं। हो, तुम लोग मरवाने के चक्कर में फिर बहुत तुम लोग, डिकोडेड मैंने एक ही लाइन में बहुत तो डिकोडेड वे में बोला है कि चाय में चीनी बढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल चाय बढ़ाया, पीना जलेबी बना दी उसके इन्होंने, जलेबी बना दी। और ये चक्कर है कि ये लोग इन्होंने हद क्रॉस कर दी है। मैं तो और ज्यादा बोलूंगा तो लोग मेरे को काटना शुरू कर देंगे। नहीं सर, अनुज सर, आई वुड लाइक टू वाइंड अप विद दैट। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग बिकॉज़ ये मैं एडिट करने वाली हूँ वीडियो, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं यार, पॉइंट्स एडिट निकाल मत कर। करो ऐसे पूरा, एडिट देखो, एडिट क्या करना है इसमें? एडिट ये यही है, नहीं, ये उसका यही है, एक समरी बीच मोटा में मोटा में, आप मोटा मोटा एक्चुअली एक समझ लीजिए। आपका दिल क्या बोलता है, मेरा दिल नहीं मानता है। कई लोग कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता तो पुरानी दिल्ली में लुकमान हकीम है, उसके पास जाओ, वो इलाज कर देगा। दिल आपका क्यों नहीं मानता? दिल नहीं मानेगा, उसको छोड़ दो। सिंपल, कोल्ड, कैलकुलेटेड आपको फैक्ट में दे रहा हूं। गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे, ये साबित इस बेस पे हुआ कि नेगेटिव हैंडराइटिंग और डीएनए रिपोर्टें थी। आज के दिन में हमारे पास में क्लियर प्रूफ है कि रिपोर्टों को फज किया गया है। तो व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन? ही ही वाज हिम, इज, ही इट वाज वाज अबाउट। हिम, तभी दबाया आपने जा रहा है, झूठी छुपाया रिपोर्टों जा के बेस पे आपको, आपने पूरे केस को दबाया। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, वो बाहर निकले क्यों नहीं आएंगे, छुप, वो कहानी अलग है ना। उसका भी डिटेल हमने किताब मरी, इंडियाज बिगेस्ट करप, उसका आप लिंक लगा दीजिएगा यहाँ पे। इंडियाज बिगेस्ट करप, सॉरी आई एम सॉरी, वो मेरी पहली बुक थी, ये कनंड्रम, कनंड्रम चंद्रचूड़ घोष में मेरी किताब जो है, उसका लिंक आप लगाइए, अमेजन पे चल रही है। तो लोग जाकर के, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू, वेरेवर, आप आपकी पहले उसका जितनी रिव्यू, भी बुक्स आप हैं उसके उनका रिव्यूज चेक कर, नाम। आप उसके रिव्यूज चेक करते हैं। तो आपसे मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, आप वहां जाइए और जाके देखिए रिव्यूज कितने उसके आए। और लाइफ में हर प्रॉब्लम का आंसर 2 लाइन में देना मुश्किल है। मैं जब आपको ये आंसर दूंगा कि वो क्यों निकल के नहीं है, तो आपको मल्टीपल चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे अब आपको मैंने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब करते करते मैं आपको बोलूं कि बीएन मलिक का नाम लूं आपके सामने, तो पब्लिक को क्या मालूम कि बीएन मलिक कौन सी चिड़िया का नाम है? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40-50 साल पहले की घटनाओं की। बीएन मलिक आईबी के डायरेक्टर थे हमारे। तो जब जनता को पता ही नहीं कि कोई कॉन्टेक्स्ट क्या, तो कॉन्टेक्स्ट समझाना बहुत टाइम लगता है। तो किताब में वो स्पेस होता है, आप लेयर बाय लेयर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाएंगे कि वॉर क्राइम्स क्या थे, सिचुएशन क्या थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कैसे वो आदमी नहीं निकल सका। लेकिन लाइफ में हर चीज का आंसर ये फिल्मी डायलॉग नहीं है राजकुमार की फिल्म का कि एक डायलॉग मारूंगा सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। क्योंकि सरकार हमको कागज नहीं दे रही है, उनके पास रिकॉर्ड होंगे कि वो वहीं थे, लेकिन जब वो देने को राजी नहीं है तो हमें इस्टेब्लिश करना बड़ा। लेकिन हाँ, जब जहां हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि वही नेताजी थे, कहानी खत्म हो गई। हाँ, इट इज ये एस्टैब्लिश्ड, इट इट इज इज एस्टेब्लिश। एस्टैब्लिश्ड। इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, दैट इज देयर प्रॉब्लम। सर, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। दोबारा जुड़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे पे, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू हैव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय हिंद सर। थैंक यू। So please stay